Finally, after 12 years or 11 years of experience, I started Dabur Investments along with my co-founders, Priyesh and Tejas. जैसे आपने आर्बर का जो पोर्टफोलियो बताया, अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपीज़ है और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में या आपके थ्रू, तो जो रिटर्न बनता है उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है? एक रिस्क जो बहुत हाई रिस्क होता है, which all in the industry knows that sales risk is a very high risk फॉर द डेवलपर। for a developer हाँ, और for an investor also, because मैं अगर वो अगर बिकेगा नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे हाँ, प्रॉब्लम आएगा right. because तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि बिसाइड्स मेट्रो लाइक मुंबई, पुणे एंड ऑल, कौन सी 5 सिटीज़ हैं जो ग्रो हो रही है इंडिया में, या कौन से उनमें क्या फैक्टर्स है जो आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से ग्रो हो रहा है? कि किसी को मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली स्टॉक खरीदना चाहिए, रियल एस्टेट क्या है? ये बहुत ही तो नेवर एंडिंग डिबेट है इसकी। तो मतलब wherever I go to, when a new client comes, ये जो फाइनेंसिंग आपने बताई रियल एस्टेट की, अगर किसी को इसमें एंटर करना है तो पहली बात तो करियर कैसे है और कैसे करियर ग्रो होता है? Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for a variety of competitive exams like CFA, FRM and SCR. And as a part of that journey, we reach to people in the professional world and we basically talk to them, trying to understand what is happening in the industry and what are the different career opportunities that are available in the market. And in the similar manner, we are having a conversation with Mr. Chirag Mehta, and he's going to be talking about a very unique topic, which is real estate investments or real estate financing. So first of all, Chirag, thank you very much for taking out time and talking to us. And this podcast is going to be a mix of Hindi and English. ठीक है? So सबसे पहले तो एक brief introduction आपके बारे में और आपकी जो कंपनी है Arbor and Justo Real Infotech. Sure. So thanks Ganesh for having me here. It's an opportunity. Thank you for giving us the opportunity. Let me take you through what I have done in my past, starting with. Right. And so I have been a merchant banker for a good amount of years. For initial part of my journey was 3 years into merchant banking, where I was part of IPOs, takeovers, mergers and acquisitions, plus valuations as well. And fortunately I had the experience of handling the first SME IPO of India, that is BCP Finance. I was part of the lead merchant banking team. Okay. And then I moved to corporate finance for a brief period of time, and then I landed up into real estate investments somehow, and the journey has been very good for a very long time. Moved into wealth management after the investments company, moved into wealth management for 5-6 years, where I was looking after real estate investments. And then finally after 12 years or 11 years of experience, I started Dabur Investments along with my co-founders Priyesh and Tejas. So we are a real estate focused investment management firm. That's what we call ourselves, and that's what the industry name is. Okay. इसको समझते कैसे है कि we are basically custodians that we bring together developer at one point in time. So any real estate developer is on one side, which have projects coming on continuously. Right. So they'll be the supplying of projects and homes to the market. But to develop it, they will require financing. Now that financing can come from various sources. It can come from banks, it can come from NBFCs, HFCs, and there are funds. And then there is last tier is the private investors. So for example, I know you and I'm developing a project, so I can always approach you that Right. why don't you lend me, or why don't you invest with me, Right. and I will give you X amount of return. वैसे ही चलता है market में. And other side is the investor side, so the HNI, ultra HNI, and the institution side. And as we know, institutions, HNIs or UHNIs, ultra HNIs, they are rapidly growing in India. And what has happened over a period of time is, in older days, when you go back, we call it old guard. Old system and old guard बोलते हैं हमारी थोड़े से लैंग्वेज में. तो उसमें कैसे होता था कि डेवलपर के पास ही 100, 200, 300 लोग हुआ करते थे. हाँ, वो लोग ही इन्वेस्ट करते रहते थे. राइट. बट फिर आपको पता होगा 2015, 16, 18 जब भी डीमो हुआ, जीएसटी हुआ, रेरा हुआ, तब एक फियास्को हो गया था सिस्टम में. फिर IL&FS भी हुआ, वो फाइनल नेल था कॉफिन फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न. राइट.
कि पूरा का पूरा जो प्राइवेट नेटवर्क था इनका, they had failed miserably in their commitments. And what happened is that means they lost the investors, which were the acquainted to the developer directly, lost a huge amount of confidence in the entire system. And this primarily happened because developer के ऊपर कोई checks and balances ही नहीं थे. Right. मतलब जैसे आपको फोन किया, आप मेरे पे चेक बैलेंसेस रख ही नहीं सकते, बिकॉज मे बी आई एम टेकिंग 100 crore रुपए बट यू आर ओनली सप्लाइंग में 1 crore रुपया, तो कैसे करोगे ये, आप लेवरेज कैसे रखोगे ये सिचुएशन में? सिक्योर्ड भी रखा तो रेट और डिले हो चुका था, राइट, और आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री हाथ में नहीं है, इन्वेंट्री हाथ में भी है तो कुछ कर नहीं सकते, आप एक ही फ्लैट बायर हो, तो क्या कर लोगे आप? So that's when the whole need arised that there should be funds who should be pooling monies of these investors, right, and doing their due diligence, market research, investee check. This is a developer check. The checks are very tedious and very thorough. That क्या पास्ट में किया हुआ है, क्या डेलिंक्वेंसीज की हुई है, उसका कैश फ्लो स्टेबिलिटी था कि नहीं था, रेवेन्यू उसका कितना स्टेबल चलता है, उसके ओवररन से, बजट ओवररन से, या कॉस्ट डिजाइन चेंजेस से, या वो अप्रूवल्स में अटक गया, या वो कोई स्कैंडल में अटक चुका है, राइट, ये सब कोई करने वाला ही नहीं था. मतलब फॉर एन इंडिविजुअल टू डू इट ऑन अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So that's when the need of specialized companies arised, and that's when we started this our investments, where we are a fund. We manage people's money, private investors, that is HNIs or high net worth individuals, ultra high net worth individuals, and institutions. They want to channelize their monies into real estate because everybody wants to build a portfolio. बराबर. It's always a portfolio approach that is more important than actually putting up into a single asset. Right. I've been a wealth manager for so many years and also a CFA. I've realized that portfolio approach is the best approach because there are a lot of assets which complement each other and sometimes hedge you against the market volatility which comes. मतलब आपको पता नहीं कि मार्केट कब आके हिट करने वाला है. राइट, राइट. मतलब यहाँ पे इजराइल ईरान का कुछ हो रहा है और अचानक से ऑयल सप्लाई डैमेज हो चुकी है और अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और मार्केट में कॉपर टर्निंग सबकी डैमेज हो चुकी है. यू डोंट नो, मतलब देयर सो मेनी फैक्टर्स. पॉलिसीज होती है, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, लेजिस्लेटिव रीजंस होते हैं, जुडिशियल रीजंस होते हैं. कभी सुप्रीम कोर्ट ने आके पुणे में बैन डाल दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे में आके आपको एक बार बैंकेट बैन डाल दिया था कि बिकॉज ऑफ द डेब्रीज. So the entire construction industry stopped. So there are a lot of reasons. What I'm trying to say is that's when the need of this specialized companies arised, and that's when in 2021 we formed ourselves. We've been doing this for past years also. We had our network of investors, network of developers, reach in the market, understanding, and we finished in the last 3 years of our formation. We finished about 20 transactions, 500 crore rupees deployed. And exited about 8 or 9 transactions with about 18-19% returns. इसको जरा आप थोड़ा सिंपल करके बताइएगा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 5 करोड़ रुपीस है, आपके फंड में पैसा डालता है, उसके बाद आपका फंड कोई प्रोजेक्ट ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है. यस. तो इसको आप साइमल्टेनियस प्रोसेस समझिए. अच्छा, ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक ए स्टेप के बाद बी स्टेप आएगा. सो ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली है बिकॉज हम कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स तो हमारे पास अनगिनत है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सिंस 2024 जिस जैन से लेके अभी तक आई हैव गॉट अबाउट 138 प्रोजेक्ट्स वर्थ टोटलिंग इन्वेस्टमेंट. तो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 12,000 करोड़ की कर ली. अच्छा, इतने प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए हैं कि these are good, bad or rejected. Okay, and it's a combination of residential and commercial. So we are primarily into residential, but we are not averse to commercial and warehousing also. Okay. So आप पोर्टफोलियो समझो कि 80% अगर हम रेजिडेंशियल में, तो 20% हम कमर्शियल और वेयरहाउसिंग में भी जाएंगे. To that extent. So that is how it is done. So Bombay, Pune, Bangalore, Hyderabad and Goa is the 4-5 markets where we are present. Right. So that is where we have invested also. So अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपए आता है तो 5 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट में नहीं आता, फिर तो वो कंसंट्रेशन रिस्क हो जाएगा. Right. कि अगर डाउन हुआ, सपोज कुछ भी हो गया, वो डेवलपर सपोज डेथ हो गई, यू डोंट नो, नोबडी नोज, राइट, तो क्या होगा? तो ऐसे नहीं होता. सो इट्स ऑलवेज अ पोर्टफोलियो अप्रोच. यू डाइवर्सिफाई. 5 करोड़ दिया तो प्रॉब्ली 1 करोड़ रुपया मैक्सिमम विल गो इन वन प्रोजेक्ट. ओके.
तो आपको 5 करोड़ में 5 प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप 1 करोड़ रुपए डालोगे तो फिर 5 प्रोजेक्ट ही मिलेंगे। सो वो अमाउंट से लेना देना नहीं है, आप जितना भी अमाउंट डालोगे वो 5 से या 6 प्रोजेक्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपीस है, इंस्टेड ऑफ बाइंग वन रियल एस्टेट हाउस, इट इज बेटर टू स्प्लिट थ्रू योर फंड एंड स्प्रेड इट अक्रॉस 5-6 प्रोजेक्ट्स। यस, तो जनरली फंड्स गिव यू बेटर रिटर्न देन ओनरशिप रिटर्न्स। हाँ, और ओनरशिप की एक अपनी प्रॉब्लम भी आती है, मेंटेनेंस, ये सब मेंटेनेंस है, आपका प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते हो, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसके बार बार जाके ऊपर, देखो, टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रेंटल्स पे डालने पड़ेंगे अगर आप रेंटल पे जा रहे हो तो। सो ये आपके ऊपर आके गिर जाता है। समझा। जबकि एक फंड में आपको इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, एक्चुअली लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट, फाइनेंसिंग। वंडरफुल। ओके, ओके। This is the first company that you're working with. The second company, Justo. So Justo is our investee company. So we are an investment firm. So we invest in multiple ventures. That's what we eventually do. So that's our actually core agenda or core purpose of ours. कि हमको investments करने, ज़्यादा से ज़्यादा investments करने। Now Justo एक opportunity जो हमारे पास I think मार्च में आई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी हमें, बहुत ही सिचुएशन बेस्ड थी। So it's a sales. What is Justo? Justo is a sales managed agency using tech-based sales managed agency. They are primarily focused in Bombay and Pune. So yearly 500 लोगों की टीम है. They do about 5,000 crores of real estate sales. So they are experts in the domain of sales. All mid-market developers. So mid-market developers का मतलब होता है जो भी वो grade A developers ही है ना. Grade A का classification हमारी इंडस्ट्री में होता है कि Oberoi's, DLF, Lodha, Godrej, Mahindras, so on and so forth. Those who have completed 1 crore square feet and उससे ज़्यादा, और उनका अंडर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी बहुत लार्ज है, उनकी टीम भी बहुत लार्ज है, एम्पल ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड देयर प्रोजेक्ट्स आर वेरी लार्ज इन साइज। 1,000 crore रुपीस प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस ही होते हैं जनरली एक सिंगल प्रोजेक्ट। मिड मार्केट इज एनीथिंग बिलो इट, जो एक मिड मार्केट होता है। Now, any real estate, some real estate is very regional specific in India. In fact, across the globe भी regional specific होते हैं, because बहुत सारे factors determine, culture determine करता है, geography determine करता है, climate determine करता है, water availability भी determine करता है इसकी। आपकी port city है, आपकी inland city है, lot of factors real estate में। फिर rules अलग हो जाते हैं। इंडिया में specifically real estate, every city and every state has their own rules of governance and policies around real estate. कैसे बेचना है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, सब अपना स्टेट का अलग है। यस, एक यूनिफाइड लॉ नहीं है। नाउ व्हेन यू कम इन रियल एस्टेट Justo, व्हेन यू कम टू Justo, so Justo is specifically right now in Maharashtra based, Pune, Bangalore, Nashik, Aurangabad, to a small degree in Bhubaneswar. The testing, because we see Bhubaneswar is also they have very good reach in Bhubaneswar with all the developers there. Right. Now we found a very interesting opportunity for us. It was a very strategic and a symbiotic relationship, because हम भी real estate में ही हैं, पर हम capital side पे हैं. Right. और वो एक रिस्क, तो हम क्या रिस्क कवर करते हैं डेवलपर के लिए? कैपिटल रिस्क। और एंड यूजर के लिए कि भाई ये साथ में आए तो इन्होंने बहुत सारी चेकिंग कर चुके हैं, कैपिटल ये प्रोवाइड करेंगे, और ये इतनी सारी रिस्क भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते जाएंगे, और डेवलपर के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का एक्टिविटी हो गया है, क्योंकि जो कैपिटल प्रोवाइडर होता है वो चेक एंड बैलेंस तो करेगा कंटिन्यूस बेसिस पे। राइट। ऑन द अदर साइड एक रिस्क जो बहुत हाई रिस्क होता है, विच ऑल इन द इंडस्ट्री नोज दैट सेल्स रिस्क इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर द डेवलपर। हाँ। और फॉर एन इन्वेस्टर ऑल्सो, बिकॉज मैं अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है। ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और बिजनेस फाइनेंसिंग दो अलग नेचर की होती है। बिजनेस फाइनेंसिंग ये अज्यूम करता है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, सो ये 5 साल 10 साल 15 साल चलने वाला है। प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक एंड डेडलाइन, so there are two fundamental different financing approaches that has to be taken here. Right. So this is a business financing opportunity that came to us. Now because it's symbiotic way, because this sales risk jo hai, these are experts. They have for the last 5 years, they've been operational for 5 years, since 2019. Pushpa Mittal formed this company. They have 500 plus member team. They have sold more than 10,000 houses आज तक 5 साल में. Wow. So they have a प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दैट उन्होंने सेल्स कर सकते हैं काफी सारा,
In fact, you won't believe, in one of our, before knowing Justo as a business case that it came to us, in one of our investee companies, which is a developer, we had another sales agency that was appointed by us. He was not able to perform, a very large one, in fact a larger one. Okay. But then the developer changed it to Justo with his own view. He was like, try it out. And what the other larger agency was not able to do in like 6 months, they were able to pull it off in 3 months. Okay. And in one more project of ours, they did phenomenally well. So we saw their actually on ground execution is far better than many other companies which are there. मतलब काफी अच्छा एग्जीक्यूशन करते हैं बाकी कंपनी से. तो बिल्डर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट बिल्डर का जो डेवलपर की जो इशू है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, उसको सेल करना है एंड कंज्यूमर, तो पूरा जस्टो एंड टू एंड देख रहा है. राइट. सो जस्टो इज अ नॉलेज पार्टनर टू अ डेवलपर. सो इसको एक नॉलेज पार्टनरशिप बोलते हैं. ओके. जस्टो कैसे हेल्प करता है पूरी जर्नी में. जैसे डेवलपर आजकल तो ऐसा हो चुका है कि डेवलपर प्रोजेक्ट लेने के पहले ही जस्टो या अलाइक कंपनी के पास चले जाते हैं कि आप अपनी एक्सपर्टीज दो कि मुझे यहाँ पे कौन सा फ्लैट बनाना चाहिए. 2 BHK 600 स्क्वायर फीट का बनाना चाहिए कि 550 स्क्वायर फीट का बनाना चाहिए, या 1 BHK बनाना चाहिए, और कैसा बनाना चाहिए ताकि वो बिके, और क्या एमिनिटीज देनी चाहिए, okay. कैसे एक्सेस रखना चाहिए, क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज करने चाहिए, बिकॉज प्राइसिंग भी ध्यान में रखनी है. राइट. आप कौन से आप लग्जरी प्रोडक्ट डोंबिवली में जाके नहीं बेच सकते. अग्रेड समझा. तो ये हर मार्केट में आपको बोल रहा हूँ अलग है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. सो डेवलपर को इनसे ही फीडबैक बेस्ट मिलता है. जो सेल कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, तो उनको समझ में आ रहा है. दे हैव मोर देन 15,000 चैनल पार्टनर, 20,000 चैनल पार्टनर रिलेशनशिप एक्टिव. वाह. अक्रॉस बॉम्बे, पुणे. सो ब्रोकर्स, हाँ, लार्ज एंड स्मॉल बोथ. तो उनको ग्राउंड से फीडबैक मिलता है. And eventually, you can design everything on the paper in the drawing room. Ultimately बिकना चाहिए. Lastly, consumer has to connect to your product. Got it. So connecting point होने चाहिए कि प्रोडक्ट तो आपका अच्छा ही होना चाहिए, और उसके बाद पिच भी अच्छी होनी चाहिए. कंज्यूमर को उसकी सर्विस भी मिलनी चाहिए कि वो उसको ग्रीट अच्छे से किया गया हो, उसको उसके प्रोसेस के थ्रू सही तरीके से लेके गए हो. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर कि एक प्रोजेक्ट है 300-400 करोड़ रुपए का. इट्स अ मिड मार्केट प्रोजेक्ट. इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ लार्ज प्रोजेक्ट, इट्स अ बीच में प्रोजेक्ट है. नाउ डेवलपर्स आजकल तो सब मैनेज एजेंसीज को रखते हैं, क्योंकि खुद के पास सेल्स की टीम ही नहीं होती है करने के लिए. यू वुड नीड अ वेरी लार्ज टीम टू डू इट. कॉस्ट भी कितना है उसको मैनेज करना. Yes, there is a large cost associated with keeping an in-house team, and this is on call. आप या तो उनको सर्विस पे रख लो, आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, और जैसे ही आपका लॉन्च खत्म हो गया, यू कैन आस्क देम टू लीव and they will go to another project. बराबर. That's how it happened. बट ये जब भी एक्टिवेशन की आवाज आती है, जैसे प्लानिंग हो गई आपकी, आपने डिजाइन कर लिया प्रोडक्ट, फिर आपने अप्रूवल भी ला लिया, अभी आ गई बारी लॉन्च की कि अभी एक्चुअल लॉन्च करना है प्रोजेक्ट को पब्लिक में, मार्केट में. तब जब ये करते हैं, तब आप इमेजिन करो कि आजू बाजू आपके पास 20-30 प्रोजेक्ट्स हैं. सो एनी रैशनल बिजनेस माइंड से आप ये सोचोगे कि हर लीड जो वो मार्केट में घर खरीदना चाह रही है, वो तो 20-30 प्रोजेक्ट पूरा ही देखेगी. हाँ. वो फेयर अजम्पशन है, वो अजम्पशन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि कोई कंज्यूमर घर खरीदना हो तो एक ही फ्लैट देखेगा और ले लेगा. कभी नहीं होता है. नहीं होता है. राइट. और जनरली ये इंडस्ट्री में कन्वर्जन रेशियोज आर अबाउट 1-2%. अगर 100 लीड्स वॉक इन होती है तो 1 या 2% ही कन्वर्ट होती है. ऐसे नहीं थे कि मतलब 100 आ गई और 50 कन्वर्ट हो जाती है. इतने अच्छे रेशियो नहीं है. सो एक तो क्वालिफाइड लीड आपको आपकी इधर लेके आनी है, और आपको कंपटीशन से नहीं, आपको बिकवाना है. तो ये पूरी, और चैनल पार्टनर्स इतने सारे हैं कि फॉर एग्जाम्पल थाने एज अ मार्केट हैव people coming from Dombivli also, people coming from Bhiwandi also, and people moving from South Bombay also to South Bombay. जैसे so आप लीड सिर्फ थाने में जनरेट नहीं करोगे, आपको लीड साउथ बॉम्बे जाके भी जनरेट करनी है, आपको सीट डोंबिवली जाके भी जनरेट करनी है, वो टारगेट ऑडियंस के पास जाके. राइट. सो इसकी एक्सपर्टीज डेवलपर के पास नहीं होती है. दैट इज वेयर दिस कंपनी कम्स इनटू द रोल. परफेक्ट. ये जस्टो आता है, या जस्टो एंड अलाइक कंपनीज कम इनटू रोल, where they are a B2B2C company. इसको दोनों पार्टनर्स हैं. एक तरफ डेवलपर है, एक तरफ चैनल पार्टनर है. हाँ. और चैनल पार्टनर के आगे कंज्यूमर है. राइट. सो जस्टो का काम है डेवलपर और चैनल पार्टनर
को साथ में मर्ज करके अच्छी स्टोरी बना के सर्विस लेवल्स खुद के एम्प्लॉयज डाल के सर्विस लेवल्स हाई लेके लीड जो आ रही है उनको क्लोज करो और उनके बाद सीआरएम करो और कलेक्ट भी करो और वहां पे उनको होम लोन्स में दिक्कत हो रही है या कलेक्शंस में दिक्कत हो रही है वो भी सॉल्व करो। सो ये एक पूरी वैल्यू चेन एक्टिविटी है जो बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी है फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर, बिकॉज आप प्रोजेक्ट ले सकते हो आपके पैसे से पर इवेंचुअली तो बेचना है ना। अग्रीड। बट अभी कनेक्टिंग क्वेश्चन, जैसे आपने आर्बर का जो पोर्टफोलियो बताया, अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपीज़ है और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में या आपके थ्रू, तो जो रिटर्न बनता है उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है? रिटर्न जनरली इज अ रेंज्ड। हाँ, ओके। सो एक रेंज में रिटर्न आता है 16, 18, 19, 15। सो दिस इज अ ब्रॉडर। अगर मैं थोड़ा सा 400 बिप्स का रेंज पकड़ूं तो 15 to 19% का रेंज। ओके, बट मैं खुद से भी करूंगा तो उतना बना लूंगा, लेकिन हैसल ज्यादा है। हैजल्स है आपके ऊपर। हाँ। और टैक्स आपको भी है। आपको वो सेफ्टी नहीं मिलेगी। हाँ, एक ड्यू डिलिजेंस वाला जो प्रोसेस है वो सब हट जाएगा। हाँ। आप कर लोगे और वो हट। सो ड्यू डिलिजेंस एक एस्पेक्ट हो गया। सो देयर आर रिस्क की बात करूं अगर मैं, तो रिस्क होती है 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरिंग, एग्जिट, 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। और ये ओवरलैप भी करती है एक दूसरे के साथ। सो एक रिस्क है जो इन्वेस्टमेंट स्टेज पे ही आइडेंटिफाई होती है, राइट। पर एक रिस्क है जो इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग स्टेज पे कंटिन्यूस रहती है हाई लेवल पे। सो जैसे कि वी नो देयर आर 39 रिस्क इन दिस रियल एस्टेट फाइनेंसिंग। तो वी आइडेंटिफाई 39 रिस्क। अच्छा। इसको हम लोग रिस्क एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सो उसमें वो भी आ गया, मैक्रो रिस्क है, मेसो रिस्क है, माइक्रो रिस्क है। मतलब एक होता है माइक्रो, मतलब आपका मार्केट रिलेटेड है, मतलब पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। अभी दिस इज मैक्रो रिलेटेड, सिस्टमैटिक रिस्क फाइनेंशियल लैंग्वेज में उसको वो भी बोलते हैं। ओके। और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क, या उसको मेसो और माइक्रो रिस्क बोलते हैं, विच इज डेवलपर रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड। ये 2 रिस्क है। बराबर। और डेवलपर के रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्क आते हैं, क्योंकि कभी वो लिटिगेशन में कोई दूसरे प्रोजेक्ट में अटक गया। तो आप ये सारा असेसमेंट कर रहे हो? ये सब कंटिन्यूस असेसमेंट हो रहा होता है। तो अब जैसे ही फंड डिसाइड करता है कि हम एक प्रोजेक्ट में पैसा डालने वाले, तो उसका जो आपने एनालिसिस किया वो सारे इन्वेस्टर्स को जाता है? सो इट्स एन आईसी कमिटी, इन्वेस्टमेंट कमिटी बनती है। दे विल टेक अ डिसीजन। सो इट्स एन एक्टिव मैनेजमेंट है, ये पैसिव नहीं है। सो और आर्बिट्री नहीं है। दिस इज समथिंग वेयर द प्रमोटर्स टेक द मैनेजमेंट इज टेकिंग द कॉल। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है ब्लाइंड पूल इन्वेस्टमेंट, जिसमें यू आर गिविंग अस द मनी एंड वी विल इन्वेस्ट। और एक होता है नॉन ब्लाइंड पूल, जिसमें होता है यू विल बी डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट अपफ्रंट, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, द रिस्क, द प्लेस, द प्राइसिंग, द कैश फ्लोज, एवरीथिंग, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। द रिटर्न्स आर डिफरेंट। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। रिटर्न ज्यादा मिलेगा। वही चीज मैं आपको इसमें आऊंगा तो रिटर्न कम मिल जाएगा। हाँ, सिमिलर टू आपका जो पीएमएस में भी होता है कि आप डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी। परफेक्ट। हाँ, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि बिसाइड्स मेट्रो लाइक मुंबई, पुणे एंड ऑल, कौन सी 5 सिटीज हैं जो ग्रो हो रही है इंडिया में, या कौन से उनमें क्या फैक्टर्स है जो आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से ग्रो हो रहा है? 5 सिटीज, तो बहुत सारी सिटीज ग्रो हो रही है गणेश। बट अगर आप 5 बोलो डिफिकल्ट है, बट अहमदाबाद इज वन, वेरी नाइसली प्लेस्ड। इंफ्रा ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रहा है वहाँ पे, मेट्रोज अच्छी आ रही है। अगर आप मुझे पूछोगे क्या फैक्टर्स है जिससे आप डिटरमाइन करते हो कि सिटी ग्रोथ अच्छी हो रही है, सो लेट मी पुट दैट फर्स्ट कि उसका इंफ्रा ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ओके। इट शुड कीप ग्रोइंग। इफ इट्स डिक्लाइनिंग एंड एजिंग तो वो सेक्टर सही नहीं है। ओके। सो क्योंकि फिर वो आपकी हेल्थ स्पेंड ज्यादा आ जाएंगे वहाँ पे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन होने में शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपकी पूरी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी उसकी। सो इट शुड बी इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, इट शुड हैव अ गुड इंफ्रा, और द डेवलपमेंट इज वेरी हाई दैट इज गोइंग ऑन। सो ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है और फोकस भी अच्छा है पॉलिटिक्स का। सो द पॉलिसी फोकस इज ऑल्सो गुड। सोशल इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, लाइक health, education, malls, recreational activities. Right. But now people will do what after a point in time? Because at the end, people want to also spend quality time with their people and have a meaningful life at the end of the day. आप वरना क्यों रहोगे किधर? Great. Then your social fabric should be good. Okay. What it means is
कि हाई क्राइम रेट्स नहीं होने चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए वहाँ पे. People are generally taking care of each other, and you know it's still a bondage that is there. Common factors are holding you together. Okay. ऐसा नहीं है कि you are so diversified that आप देखते ही नहीं हो एक दूसरे को. तो वो कॉमन फैक्टर्स नहीं आ पाते हैं, बिकॉज कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए. Businesses are always made on common factors. Right. No, Very, like very interesting point. yes. Very interesting point. हाँ. So ये होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, इंफ्रा, सोशल फैब्रिक, एक्सेस टू टैलेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेस टू Okay. टैलेंट. फॉर एग्जांपल आज आप जीसीसीज लीजिए, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, वो टॉप 5 सिटीज में फोकस कर रही है, बहुत कम जा रही है छोटी सिटीज में. एक ही रीजन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो है ही है वहाँ पे कम. छोटी सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग आप बॉम्बे से कंपेयर करो तो हाफ हो जाता है. हाँ हाँ. इनफैक्ट बैंगलोर इज ऑल्सो एट गुड 25-30% डिस्काउंट एट बॉम्बे, or maybe higher in many aspects. But access to capital, access to talent होना चाहिए. या तो इन हाउस होना चाहिए या तो बाहर से इजीली आ रहा बाहर से इमिग्रेशन आ सके. तो why Bangalore is the hub? It is because of the access of capital. The infra is not the best. हाँ वो तो है ही नहीं, तो बहुत सुने आ रहा है. But and it is falling. मतलब हाँ. people are hearing stories about, and everybody knows traveling अगर करे तो 2-3 घंटे ट्रैफिक में अटक जाते हो. एक जगह से पॉइंट 2 जाना हो तो मतलब it's a stressful event. Right. But the access to talent is just phenomenal there. That is a driving factor. And the last is cost of living. कि eventually you can't end up spending, you know, whatever you earn, कि आप उसी में खर्चा करना शुरू कर दो. Right. Right. तो एंडी चैप्टर ही हो गया ये 5-6 फैक्टर्स होते हैं जो मैं प्राइमरीली गिनता हूँ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, जीडीपी ग्रो होनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रो होनी चाहिए, Right. उसका स्कोर कार्ड ऑफ रियल एस्टेट स्कोर कार्ड अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए. If you count all these factors, I like Ahmedabad as a market. Ahmedabad is a very promising market, very entrepreneurship driven, micro Community, market, yeah. community driven micro market. ट्रस्ट पे आज भी चीजें चल रही है वहाँ पे. इट शोज दैट देयर सोशल फैब्रिक इज स्टिल इंटैक्ट, क्योंकि वरना वो नहीं चलती है जनरली. इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ देखो तो बहुत ही फिनोमिनल इंफ्रा डेवलपमेंट है. मतलब द रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, द बुलेट ट्रेन इज स्पेसिफिकली अहमदाबाद मुंबई. They have in metros, multiple metros coming up. They have Sanand, which is a very big economic center. Okay. Automobile, Tata ne वहाँ पे. Right, right. You have Gift City, which is close. You have Mundra Port. So it's become a hub. मतलब उस साइड आप जाओ तो port. This is like a kind of a common hub area. Educational facilities अच्छी है, hospital facilities अच्छी है, living standards अच्छे हैं लोगों के वहाँ पे. Okay. So, and industries काफी आ रही है, right from service to manufacturing both. If you see, Right. Gujarat is also the manufacturing hub of India. So, Ahmedabad is definitely one of the places. और कोई उनके अलावा अहमदाबाद? नहीं, बहुत सारी है. Ahmedabad है, Kolkata is there. Kolkata, of course, we all know the history of Kolkata. मतलब it was a rising. Once the major city of major India, city of in fact, India, yes. the most major economic city इंडिया का कोलकाता कोलकाता था. yes. पॉलिसीज ने उसको पीछे छोड़ दिया. बाकी वहाँ एंटरप्राइजिंग लोग काफी ज्यादा थे. सो बट अभी वहाँ पे इंफ्रा फोकस तो भी ठीक है. मतलब ऑलरेडी 50-60 किलोमीटर का मेट्रो फेज 1 एक्टिवेट हो रहा है वहाँ पे. सैटेलाइट सिटीज बन रही है काफी सारी. अच्छा. इंडस्ट्रीज भी आ रही है, वो स्पीड पे नहीं आ रही है जितना हम पसंद करेंगे, पर उसकी पॉपुलेशन काफी बड़ी है कोलकाता की, एंड स्टिल इंक्रीजिंग. और टैलेंट पूल भी डिसेंट है. टैलेंट पूल है, वो चले जाता है वहां से छोड़ के बैंगलोर, बॉम्बे, बैंगलोर बहुत आते हैं. तो उनके पास हुक नहीं है वो रोकने का कि ग्लोबल सेंटर्स कम देयर, और वो हुक नहीं है. एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर वो यू हैव टू वॉच, अगर ये हुक्स आ रहे हो वहां पे तो कोलकाता इज वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज अगेन पोर्ट सिटी. हाँ, अग्रीड. हाँ, पोर्ट सिटी ऑलवेज डेवलप्स. यस, सो जनरली इफ यू सी ग्लोबली आपकी कुछ 50-60% पॉपुलेशन तो पोर्ट्स पे, मतलब सी पे रहती है, राइट, नियर द कोस्टल एरिया. दैट्स हाउ इट इज ऑलवेज. राइट. सो ये तो अनफॉर्चुनेट है कि ये पीछे रह गया, बट आई सी अनटैप्ड पोटेंशियल काफी है. अगर इसको राइटली इफ यू कीप फोकस तो ये काफी कर सकता है अच्छा. यू हैव चेन्नई. हाँ, ओके. चेन्नई इज अगेन अ वेरी गुड मार्केट. बहुत सारी एसईजेड्स हैं. इनफैक्ट वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक एसईजेड्स भी है. ओके. आई डोंट नो मेनी पीपल नो इट. वहाँ पे जापानीज का खुद का एसईजेड्स है, ओनली फॉर जापानीज कंपनीज.
Okay. It's also the automobile hub of India. It's a Detroit of yes. India. Yes. IT sales exports बहुत करता है. It does about 90,000 1 lakh crores of IT sales. IT products जो सॉफ्टवेयर Exports. जो बैंगलोर का डोमेन वो है, पर चेन्नई भी करता है. Okay. बैंगलोर तो लीडर ही है, पर Okay. चेन्नई भी बहुत कुछ करता है. Then Yeah, there is, I was not aware about this. yeah, it does good amount of export. Port City again. हाँ. Very good access to Singapore, which is a Right, major very, very financial good. hub. हाँ. Very good access. They have talent. We all know how Tamilians are intelligent people. And they have been like Tata के head भी वही बैठे हैं, तो ऐसे नहीं है कि so they have all the factors, but somewhere I see their policy sometimes is not in favor. They do a lot of public policies, और आप freebies चले जाते हैं, वो वाली activities में चले जाते हैं. Otherwise, water scarcity is another issue. Chennai is Bangalore is also facing, no? So in some Bangalore because of bad development. But यहाँ पे तो Kaveri River is shrinking. That is one very major problem, and groundwater is depletion. So वहाँ पे वो पॉलिसी नहीं आई है कि उनको रिवाइव किया जाए, क्योंकि वाटर के बगैर आप फोकस ही नहीं है पॉलिटिक्स का. यस, पॉलिसी फोकस नहीं है कि आप इसको सही कर दो. बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, इमेंस पोटेंशियल है. Coimbatore is another sector. Like I've heard a lot about Coimbatore. Manchester, it's a textile hub of India. It's called the Manchester of India. Okay. It's a textile hub, huge textile exports and pumps. So pump का hub है वो India में. Lot of startups are now opening up in Coimbatore. Coimbatore, the climate is fantastic. All year round, your climate is pleasant. It's like another Bangalore. Plus the cost of living is very low. The social fabric is very nice. It's very calm city, and there are a lot of industries which are already present there and enterprising people present there. So Coimbatore and infra बहुत अच्छा आ रहा है वहाँ पे. It's getting connected with Bangalore. It's getting connected with Chennai. It's getting connected with Kerala side. So it's getting connected on multiple. Like metro भी आ रही है वहाँ पे. So काफी डेवलपमेंट आ रहा है. So Coimbatore is also one big city to look after. कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि आपने गिफ्ट सिटी की बात की, ऑडियंस को शायद पता नहीं कि एग्जैक्टली गिफ्ट सिटी क्या है और क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, तो आप थोड़ा सा एक व्यू दे सकते हो. गिफ्ट सिटी आई थिंक फॉर्म हुई थी 2007 में. तो गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक सिटी. सो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, गवर्नमेंट 2007 में आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा जब भी बहुत सारे ना ऑफशोर ट्रांजैक्शन हो रहे थे इंडिया में. सो जैसे केमन आइलैंड्स, मॉरिशस रूट, ऑल दिस ऑफशोर ट्रांजैक्शंस जो नोटोरियस भी हो गए थे. तो सब कंपनी वहां क्रिएट करो और बिजनेस यहाँ कर रहे थे. ओके. सो ये बहुत हो गया था. तो एंड इंडिया, सो पीपल वर गोइंग देयर, एंड ऑल्सो देन इंडिया रियलाइज के फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया एक पीछे है, बिकॉज ये सब डोमेस्टिक ही है और हम वहाँ पे एक्सपोर्ट फोकस नहीं कर पा रहे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, SEZ बना लिया, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, एक छोटा सा. आप वहाँ से काम करो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का. अगर आप फॉरेन सप्लायर को काम करो, फॉरेन सर्विस, फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन एजेंसीज को सप्लाई कर रहे हो अपनी सर्विसेज, तो आपको टैक्स रिबेट्स है, आपको GST नहीं है, आपको टैक्स हॉलीडेज भी है. सो इतने बेनिफिट्स दे दिए आपको कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे धंधा करो, और कंप्लायंस भी कम कर दिया आपके लिए. द ओरिजिनल एंड ओवरऑल आइडिया वाज टू मेक इट लाइक अ सिंगापुर एंड दुबई. जैसे दुबई में BFSC है, सिंगापुर इज अ फाइनेंशियल हब. इंडिया शुड ऑल्सो हैव वन ऑफशोर फाइनेंशियल हब. राइट. एंड ऑल्सो यू सी अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज, इंडियन कंपनीज वहाँ पे पेरेंट कंपनी को शिफ्ट कर देती थी. ये सब नहीं करो, क्योंकि आप इंडिया में धंधा कर रहे हो तो इंडिया में रखो. वोडाफोन केस का भी वही केस हुआ था, बड़ा केस हुआ था, 22,000 करोड़ का डिफॉल्ट. ऑफ कोर्स वही था कि उन्होंने शेयर्स वहां के बेचे, पर आईटी का आर्गुमेंट है कि बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस तो यहाँ पे है, तो आप वहां क्यों जा रहे हो. तो इंडिया में तो आप गिफ्ट पे जाके करो, मुझे कोई आपको फॉरेन पैसा लाना है, आप वहां जाके करो. मैं आपको कंप्लायंस कम कर दूंगा, मैं आपको टैक्स बेनिफिट दे दूंगा, कि इतनी आपको टीडीएस एक्टिविटीज नहीं करवाऊंगा. 2007 में ये चालू हुआ आइडिया, पर 2019-20 से कुछ खास ट्रैक्शन नहीं पकड़ा था इसमें. पीपल वर वेटिंग एंड वॉचिंग. मतलब आपको मैं अगर नंबर दूं तो 12 बैंक्स ने अपनी ऑफिस सेटअप की थी फाइनेंशियल में कि 2019-20 तक. लास्ट 3 साल में
2020 के बाद अभी तक 150 कंपनीज आ चुकी है। ये जो Insurance- बैंक्स है वो बैंक्स, इंश्योरेंस, ओके री इंश्योरेंस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके हैं वहाँ पे एंड ग्रोइंग रैपिडली। सो जस्ट यू कैन से 3 साल में ना ट्रैक्शन मिल शुरू। आपको इस एक और नंबर से मालूम पड़ता है कि इसकी लीजिंग एक्टिविटी कैसे चल रही थी ओके हाँ गिफ्ट की। तो जो उनने 2007 से 19-20 तक नहीं किया, वो उन्होंने लास्ट 3 साल से उससे मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। मतलब कुछ 5 लाख स्क्वायर फीट लीज हो चुके थे। तो एक जस्ट कनेक्ट करियर पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आज के डेट में मॉर्गन स्टैनली का एक ऑफिस यहाँ पे इंडिया में है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, सिमिलरली दे कैन सेटअप ओवर देयर एंड डायरेक्टली सर्विस कर सकते हैं Absolutely. और उनको टैक्सेस में बहुत रिलैक्सेशन। टैक्सेस में रिलैक्सेशन होगी। ओके Now what is the limitation why everybody is not doing it there? As I told you, कोई भी ज्योग्राफी या रियल एस्टेट के ऊपर आने के लिए एक्सेस टू टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट वहाँ पे वो अभी भी चैलेंज तो अभी है किसी बिकॉज गिफ्ट इज अहमदाबाद से भी थोड़ा दूर, तो टैलेंट नहीं है वो आपके पास बेस्ट में बेस्ट अवेलेबल। बट आई सी प्रॉमिसिंग फ्यूचर कि फ्यूचर में जैसे ये बुलेट ट्रेन आती है, ट्रांसपोर्टेशन मोर एक्सेसिबल हो जाता है, लॉट ऑफ एटलीस्ट मिडिल टायर और लो टायर जॉब्स एंड एक्टिविटीज विल स्टार्ट मूविंग टू गिफ्ट सिटीज कि आप वहां से ऑपरेट कर लो। राइट क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग फिनोमिनली लो है बॉम्बे के सामने, फिनोमिनली लो है। तो जो हमारी ऑडियंस भी जो करियर पर्सपेक्टिव से भी देख रही है उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि फ्यूचर में अगर हमको अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है तो दे कैन गो, दे कैन थिंक अबाउट इट। आई नो सो मेनी कंपनीज जो जिन्होंने गिफ्ट में ऑफिस बना दी है, उनको एक ही दिक्कत है, टैलेंट नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कोई इंटेलिजेंट आदमी वहां जा रहा है तो उसका जॉब मिल जाएगा उसको। वंडरफुल ओके एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है कि किसी को मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली स्टॉक खरीदना चाहिए, रियल एस्टेट क्या है? ये बहुत ही ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है इसकी। तो मतलब वेरेवर आई गो टू व्हेन अ न्यू क्लाइंट कम्स, और जब भी जैसे आज मार्केट का फ्रेंजी चल रहा है, हाउ द मार्केट हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 3 years इज फिनोमिनल। सो हम लोग को सबसे बड़ी फाइट ही आती है स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट कि अब मैं यहाँ क्यों डालूं पैसे। देन वी हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि दिस इज नॉट अ वेरी राइट mix. They are complementary and they are simultaneously existing. आप इसको कंपटीशन में मत रखो बिकॉज ये रॉन्ग एनालिसिस हो जाती है। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। एक होता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका 1 साल का होराइजन है, आपका 15 साल का होराइजन है। आपको स्टेबिलिटी कैसी चाहिए, आपको रिटर्न कैसे चाहिए, आपको लिक्विडिटी कैसी चाहिए, आपको बहुत ही लिक्विड चाहिए कि नहीं मुझे कल निकल सकता होगा, तो स्टॉक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। स्टॉक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप बोलते हो कि नहीं मुझे वोलेटिलिटी नहीं चाहिए होती है, तो आप आओ रियल एस्टेट में। अगर आपको बहुत अच्छी वोलेटिलिटी चाहिए, फिर ओके विद वोलेटिलिटी अप एंड डाउन आप यहाँ जाओ। फिर ट्रांसपेरेंसी, रियल एस्टेट इज लेस ट्रांसपेरेंट। वो डिफरेंस तो है। सम पीपल वांट एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी। I don't want to get into the too much mathematics of it. So SEBI which is there, which is a wonderful job for the sector, financial sector. But यही आप रियल एस्टेट में आओ तो रेरा अपनी अपनी लेवल्स पे हर स्टेट अपना अपना कुछ कर रहे हैं। राइट उसमें भी महाराष्ट्र रेरा तो डिसेंट काम किया है। बहुत सारी 2-3 स्टेट से तो आई थिंक रेरा उनका ऑपरेशनल भी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं है मार्केट में। सो ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट में जाओ। सो ये 7-8 देयर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग के स्टॉक मार्केट के रियल एस्टेट। बट मेरा अगर आप मत पूछोगे इसमें, बीइंग अ वेल्थ मैनेजर फॉर गुड 5-6 years 8 years एंड डन दिस थिंग दैट पोर्टफोलियो में दोनों ही होने चाहिए। आपका रियल एस्टेट भी होना चाहिए, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक घर जो आप लो उसको मैं रियल एस्टेट कंसिडर करता हूँ, मैं उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं कंसिडर करता। आप रह रहे हो उसमें, आप उसमें रह रहे हो। कल आप उठ के अगर आपको बड़ा घर लगेगा तो आप ये बेच के दूसरा घर लोगे, या तो आप बहुत वेल्दी बन गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इट्स एन इमटेरियल क्वेश्चन। सो एवरीबॉडी आई नो, एवरीबॉडी आई हैव सीन मोर देन 500 portfolios of wealthy people. Everybody I know both invested, stock also and real estate also. Right. And these are the 2-3 asset classes in India. मतलब स्टॉक है, रियल एस्टेट है और गोल्ड है। ये 3 एसेट क्लासेस इंडिया में काफी, और स्टॉक तो अभी पिकअप करा, पेनिट्रेशन तो आप जानते हैं, पेनिट्रेशन तो काफी लो है, पर रियल एस्टेट तो ट्रेडिशनली लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। ट्रेडिशनली
तो अगर मैं जेनरिक पूछूं, आई नो इट इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, कितना परसेंट आपको आइडियली रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का इन रियल एस्टेट? Let me give you an analogy or an example by Okay. giving you an example by an age group. कि अगर आप 25 years के हो, so 25 years में you can afford to put 100% in stock market. And stock market में भी आप SME या high risky stocks भी अच्छा कर सकते हो, because you still have time to grow your assets and you can take some fundamental bets, Right. which may be very high risky. But as you age, एंड द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ज्यादा है, आपको कुछ इनकम जनरेटिंग एसेट्स भी चाहिए रहेंगे. जैसे दिस रियल एस्टेट इज एन इनकम जनरेटिंग एसेट. आप कमर्शियल एसेट ले लो, आपको 6-7%, 8% रेंट आना शुरू हो जाएगा. आप रेट में डाल दीजिए, आपको 7% तो डिविडेंड ही दे देता है वो. सो बहुत ही अच्छे एसेट्स है, तो आपको इनकम भी आती है घर में चलाने के लिए. बट अगर आप कैश को छोड़ सकते हो टेबल से, तो आप स्टॉक पे जा सकते हो. यार रियल एस्टेट में भी वैसी रिस्की बेट्स होती है. लैंड एक्विजिशन में भी, लैंड में आप पैसा डालो, अगर आप 5-10 साल होल्ड कर सको तो इट विल मल्टीप्लाई. बराबर. ऑल्सो एक बड़ा फैक्टर है लेवरेज. रियल एस्टेट में आपको लेवरेज मिलती है, स्टॉक मार्केट में आपको लेवरेज नहीं मिलती है. अनटिल अनलेस आप ट्रेडिंग या F&O कर रहे हो, जो तो अल्ट्रा रिस्की सेगमेंट हो गया. मतलब सेबी की रिपोर्ट बहुत क्लियरली बोलती है कि 90% लोग तो हार रहे हैं. हाँ, राइट. So 10% कमा रहे हैं. If you can put yourself in 10%, nothing like it. Then you don't need portfolio analysis. So आपने REITs बोला ना, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है और REITs में क्या फर्क है? So हम रियल एस्टेट में डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए. REITs खुद के प्रोजेक्ट्स करते हैं. REITs आर ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड्स. आप ऐसे समझिए, ये भी म्यूचुअल फंड ही है. ओके. बट ये रियल एस्टेट ओसी रेडी प्रमाइस, कमर्शियल जनरली या वेयर हाउसिंग जनरली इंडिया में अभी तक सिर्फ कमर्शियल है. राइट. एम्बेसी, माइंडस्पेस एंड बुकफील्ड, ये 3 ही है. तो कमर्शियल पोर्टफोलियो है इनका. ग्रेड ए कमर्शियल बोलते हैं उसको. मतलब इट्स बेस्ट डिजाइन, बेस्ट टेनेंट्स, प्रोफेशनली मैनेज्ड, फ्यूचर केप्ट इन माइंड, फ्यूचर डिजाइन केप्ट इन माइंड. सो कैश फ्लो स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है इसकी. सो ग्रेड ए स्टॉक होता है इनके पास. सो REIT इज अ वेरी स्टेबल एसेट क्लास. मतलब आप कोविड में भी देखो, टेस्ट हो चुका था, रेंटल्स नहीं गिरे थे उनके. ओके. सो उनके स्टॉक भी इतने क्रैश नहीं होते. बट वो लोग खुद से ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हो. बेसिकली आप किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के थ्रू कर रहे हो. एब्सोल्युटली. सो वी आर कोलैबोरेटर्स. दे आर लाइक, सो एम्बेसी एग्जांपल ले, अगर एम्बेसी वाज इज अ डेवलपर. ब्लैकस्टोन और एम्बेसी ने टाई अप किया. तो ब्लैकस्टोन इज द लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन द वर्ल्ड. उसका 20-25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में. तो उसमें एक सर्टेन पोर्शन एम्बेसी के साथ है. एम्बेसी ने बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई, जिसको गूगल को लीज किया, माइक्रोसॉफ्ट को लीज किया, एप्पल को लीज किया. ग्रेड ए कंपनीज आप बात करो तो मतलब ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लिस्टेड है. बहुत सारी तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है इसमें से, उनसे रेंट आता है. सो ये जनरली माना जाता है कि ये कंपनीज कभी अपने रेंटल पे डिफॉल्ट नहीं करेगी, वरना उनका स्टॉक ही प्लमेट हो जाएगा. बराबर. ठीक है. सो इट्स कंसीडर्ड अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट. बैंक्स होती है, सो एंड सो फोर्थ. और ये बहुत लार्ज स्पेसेस लेते हैं. मतलब their core operations or some large operations are established here, and they also spend too much on its upgrading. So जैसे मैंने इंटीरियर करके नहीं दिया होता, वो लोग इंटीरियर पे स्पेंड कर रहे होते लसी. काफी स्पेंड करता है उसके ऊपर. गूगल तो सभी जानते हैं कि गूगल अगर स्पेंड करता है, अपनी ऑफिस बनाता है, तो जितना रेंट नहीं होता उससे ज्यादा वो स्पेंड कर लेता है उसकी इंटीरियर्स पे. तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे होराइजन के लिए रहने वाले हैं यहाँ पे. प्लस इनकी रेंटल्स बहुत स्टेबल है. एप्रिसिएशंस, रेंटल एस्केलेशंस जो बोलते हैं 5% ईच ईयर, 15% 3 years और 12% 3 year, ये भी सेट है. मतलब यू नो दैट देयर ग्रोथ इज राइट. सो यू कैन प्रोजेक्ट द कैश फ्लोज वेरी क्लियरली कि ग्रोथ तो आ ही रही है. और प्लस फिर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी अगर हो गई कि इंटरेस्ट रेट जैसे RBI रेपो चेंज करता रहता है, तो उससे उसको इम्पैक्ट आता है प्राइसिंग में. बिकॉज अगर RBI नीचे गिराते रहेगा तो उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी. हाँ, ओके, समझा. मतलब द प्राइस, ट्रेडिंग प्राइस वो बढ़ते जाएगी. ओके. अगर RBI इंक्रीज करते जाएगा अपना इंटरेस्ट रेट, तो इनका प्राइस पूरा थोड़ा नीचे, क्योंकि प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट से, बिकॉज उन्होंने लोन लिया हुआ होता है प्रॉपर्टी पे.
सो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ही बढ़ गया ना अचानक से। People will exit basically. A lot of people will. मतलब real estate में भी generally when the interest rate goes up, people will not go for buying. Buying home. goes down. Right. It's a direct relation with Right. that. कि interest rate ऊपर, buying goes down, interest rate नीचे, buying goes up. Because आपका future interest बहुत affect हो जाता है 1% 2% से। 30 साल का लोन लो और 1% चेंज हो चुका है तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत बड़ा इंटरेस्ट जंप होता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है और प्रॉफिट से आपका वैल्यूएशन निकलती है। तो दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड। बट रीट जनरली इज अ वेरी स्टेबल एसेट क्लास। मतलब अगर आप देखो एम्बेसी ने 5 साल से लिस्टेड है आई बिलीव, और उसने 16 to 18% एनुअल रिटर्न दिए हैं डिविडेंड प्लस एप्रिसिएशन में। सो दे हैव टू काइंड ऑफ रिटर्न। एक तो वो आपको रेगुलर हर मंथली या क्वार्टरली आपको पैसे देते जाएंगे रेंटल्स के फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड्स आके डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी वही करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये पास थ्रू में होता है तो टैक्सेशन आपके ऊपर लगता है, आप अपना स्लैब रेट पे देखिए। राइट। बट देन देयर इज अ प्राइस व्हिच इज पब्लिकली ट्रेडेड, राइट? तो वो भी अप्रिशिएटेड नीचे जा सकता है। जनरली दे हैव अप्रिशिएटेड एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वो रेंटल ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऊपर जा रही है, तो वो अप्रिशिएट ही होती है। तो आपने जो भी 17-18% बोला, दैट्स अ कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड टोटल रिटर्न 7% के आसपास उनका डिविडेंड यील्ड रहता है। यील्ड से बात होती है यहाँ पे, और 10-12%, 9% to 12% डिपेंड मार्केट टू मार्केट। कभी मार्केट अच्छा हुआ तो 16%, 18% तो एप्रिसिएशन ही कर लिया उससे, और कभी लो मार्केट हो तो 5-6% तक उसने एप्रिशिएट किया हुआ है। जनरली दे आर एप्रिशिएटिंग इन नेचर। बट आपका जो फंड है उसमें डिविडेंड यील्ड नहीं आ रहा है बिकॉज वो प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल है, हमें इंटरेस्ट इनकम आती है। डेवलपर इज पेइंग बेसिकली। हाँ, ओके। इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट। इट्स अ डेट इन्वेस्टमेंट। सो हमारे में भी दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन रियल एस्टेट होता है या प्राइवेट क्रेडिट इन रियल एस्टेट होता है। ओके, क्रेडिट इज द डेट पार्ट। क्रेडिट, प्राइवेट क्रेडिट को डेट बोलते हैं। आप दूसरे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपने डेवलपर को ब्याज पे दे दिया, बराबर। और इक्विटी मतलब आपने भागीदारी पे दिया हुआ है। प्राइवेट इक्विटी ग्रेड ए के साथ ही होती है बिकॉज प्राइवेट इक्विटी के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है इन रियल एस्टेट में। बट इट इज सिमिलर टू रीट्स ओनली देन? नो, स्टिल नॉट सिमिलर टू रीट, क्योंकि आप कोलैबोरेट कर रहे हो। वही डिफरेंस। मैं प्रॉफिट लेके वो प्रोजेक्ट में से निकल जाऊंगा। रीट परपेचुअल हो गया क्योंकि उन्होंने खुद ने डेवलप किया और वो खुद ही लीज करते जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्डिंग अभी 40 साल तक चलेगी, टूट के वापस बनाएंगे। समझा। इंटरेस्ट ये परपेचुअल है। हमारा लिमिटेड है, हम वापस से नया फंड लाएंगे। ये फंड हो गया, डिप्लॉय कर दिया, ये 4 साल चलेगा, उसके बाद नया आएगा। दूसरे साल में जब ये डिप्लॉयमेंट हो गया, दूसरे साल में नया फंड आएगा। सो कंटिन्यूसली नया फंड आते रहता है। उनका एक बार आ गया वो चलते जाएगा लॉन्ग टर्म। सो वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल एसेट हमारा मीडियम टर्म एसेट है। ओके। सो एग्जिट स्ट्रेटेजीज हमको पता है, हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजीज क्या है। वी हैव अ लॉक्ड इन विंडो है पीरियड का, उसमें आपको एग्जिट मिल जाता है यहाँ से। ओके। परपेचुअल नहीं है, 10 ईयर 15 ईयर 50 ईयर, ऐसा नहीं कि आपके पैसा अंदर आया चला जाएगा ही नहीं, वो रिटर्न भी जाएगा पूरा। फिर आप डिसाइड करना आपको करना है नहीं करना वापस से। इंटरेस्टिंग। दैट्स हाउ इट हैपेंस। एक फॉलोअप क्वेश्चन, मैं करियर पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ कि ये जो फाइनेंसिंग आपने बताई रियल एस्टेट की, अगर किसी को इसमें एंटर करना है तो पहली बात तो करियर कैसे है और कैसे करियर ग्रो होता है? अगर रियल एस्टेट फाइनेंसिंग चालू करनी है, फर्स्ट फ्यू कंपनीज दैट ही कैन टारगेट इज बैंक्स, NBFCs एंड फंड्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, बट आप फंड, NBFC और बैंक को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। और फंड फॉरेन भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। बैंक भी फॉरेन हो सकता है, डोमेस्टिक। तो फॉरेन और डोमेस्टिक का हो सकता है, बट ये 3 ही क्राइटेरिया, कैपिटल स्टैक में जनरली ये 3 ही आता है। ओके। अभी अंदर घुसने के लिए क्या चाहिए बैंक में? एक बेसिक लेवल का टेक्निकल स्किल्स चाहिए कि आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको GDP समझ ही नहीं आ रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के सिटीज कैसे ग्रो होती है बेसिक तरीके से, मतलब पॉपुलेशन ग्रो क्यों होती है, टैलेंट कब आता है कब जाता है, जो मैंने फैक्टर्स डिटरमाइन किए थे, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दो 6-7 पे, बस आपको पूरा समय। अगर यहाँ से रोड पास होगा, अभी ये 2 लेन रोड है और ये 8 लेन बन जाएगा, और व्हीकलर ट्रैफिक यहाँ से 10 गाड़ियां मूव कर रही है और वो अभी 10,000 जा रही है, तो आपको मैथमेटिक्स बहुत सिंपली क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे होटल खोल देना चाहिए या आपको रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। यहाँ प्रॉब्ली इकोनॉमिक सेंटर नजदीक है तो इसका एक्सेस अच्छा है तो रेसिडेंशियल खोल दो यहाँ पे। तो बेसिक आपको लोकेशन एनालिसिस करना आना चाहिए, और लोकेशन एनालिसिस आप यही चीज पे करोगे।
मैं कई बार बोलता हूँ कि बॉम्बे लास्ट 20-30 ईयर्स में बहुत चेंज हुआ है। पहले हमारे इधर शटर्स हुआ करते थे स्टील के, आज हमारे पास कांच की विंडोज होती है, कांच के डोर्स होते हैं। हाँ, वो भी हाँ। आपको गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स में दिखेंगे। राइट। ज्वेलरी शॉप्स बड़ी बड़ी, सिर्फ रात को आप जाओ बंद करके तो सिर्फ डोर कांच का है, आपको दिखेगी हाँ। तनिष की है वो सब। दैट शोज दैट वो लोकेलिटी बहुत सेफ है। आज तो कोई भी तोड़ के जा सकता है। राइट। सो दैट शोज कि वो लोकेलिटी इंप्रूव हो चुकी है। तो आपको ये सब माइन्यूट फैक्टर्स भी दिया, तो आपको ये देखने की नजरिया होना चाहिए कि क्या चीज देखनी है। तो इकोनॉमिक्स आना चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए। ओके। क्या आपको एक्सेल यूज करना आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का भी कैश फ्लो प्रोजेक्ट करना पड़ता है, उसके उसकी भी चीजें नंबर क्रंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंसिंग में नंबर क्रंचिंग इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ इट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए बेसिक लेवल पे। आप स्टार्ट में आओ तो आपको पता है कि बेसिक क्या है, कि भाई यहाँ पे 4 साल में पैसे डूबने का डर है, तो क्या क्या रिस्क आते हैं। मुझे लगता है 3-4 रिस्क भी अगर प्राइमरली समझ गए कि इन्वेस्टी रिस्क या डेवलपर रिस्क, डेवलपर को भी मैं ढंग से देख लूँ कि उसने अपने पास्ट में क्या किया हुआ है, और वो मेरे पास अच्छी सी इंफॉर्मेशन मैंने कंपाइल करके मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। सो ये रिस्क एनालिसिस आना चाहिए। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, यू हैव नेगोशिएट, दिस आर लिटिल हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स हो गए। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको अगर ग्रो करना है इसमें, तो आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के साथ ग्रो नहीं कर पाओगे। वैल्यूएशन आनी चाहिए, टेक्निकली की वैल्यूएशन भी करनी है वो, पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है रियल एस्टेट में वैल्यूएशन करनी। बट सॉफ्टवेयर स्किल्स रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जनरली वी ऑल नो इन द मार्केट के रियल एस्टेट में रियल एस्टेट डेवलपर्स आर वेरी complex kind of people. Okay, so not very straightforward in in their approach. This is because of their nature of dealing. They deal with licensing officers, politics officers, and everything. It is the nature of it. So we can give okay with it. But because they are like that, can you read the fine print? ये बोलना क्या चाह रहा है, and can you now have the market access to अंडरस्टैंड कि ये जो बोल रहा है मैं कोलैबोरेट तो करूं मल्टीपल सोर्सेज से, क्योंकि आप एक ही जन की बात मान लोगे तो वन साइडेड स्टोरी आप मानते हो। आपको कोलैबोरेट करनी होती है। तो इट्स लाइक साइंस में जैसे बोला ट्रायंगुलेशन होता है कि आपको अगर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो ट्रायंगुलेशन करनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर लेवल पर ट्रायंगुलेशन ही करनी पड़ती है कंटिन्यूसली। ब्रोकर से बात किया, कंज्यूमर से बात किया, डेवलपर से बात किया, दूसरे बैंकर से बात किया, दूसरे डेवलपर से बात किया। Okay. So, or multiple ऐसे लोगों से, maybe you can talk to officers, you can talk to architects. So there's so many people involved. You need to know how to tackle. Time management is extremely important. Extremely important. मतलब because it's an investment line, it is always time sensitive. Right. आज पैसा चाहिए, कल 2-4 महीने के बाद का वैल्यू खत्म हो जाता है उसका। Right. तो टाइम अगर आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, सो एक्चुअली इफ यू वांट टू सम अप टेक्निकल स्किल्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिस्क, ये अगर आपको आता है बेसिक लेवल पे, नॉट लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल। सॉफ्टवेयर स्किल्स में कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, रीडिंग अ पर्सनैलिटी एंड टीम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, यू आर थ्रू। देयर आर सम स्पेशल कोर्सेज यू कैन डू फॉर CFA कर सकते हैं, CFA is very relevant, MBA finance is relevant, FRM is relevant for risk angle. Then there are specific programs of good universities like IIM के भी कुछ है, foreign universities के भी है, जो real estate specific है, investment specific भी है, economic specific भी है, CRE commercial real estate specific भी है. So it can give you a very good guide कि मैं, और कुछ स्पेसिफिक अगर इफ यू आर सो इंटरेस्टेड कि मुझे सिर्फ यही करना है, तो फिर आप मास्टर्स कर सकते हो स्पेसिफिक रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, विच इज RICS करके इंस्टीट्यूशन है जो एक्रेडिटेड ग्लोबली है, जो करवाते हैं, आई थिंक इधर पनवेल में ही है, दे डू इट एंड दे हैव देयर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आल्सो कॉल्ड MRICS, FRICS, which is like then you can sign valuation reports of real estate. Okay. That is accredited by government. So that you can do. So this is how you can go. But target wise banks, NBFCs and funds. तो banks, NBFC और fund में जब
एंट्री कर रहे हैं तो जनरली टीम्स कैसे, एक रिसर्च की टीम होती है रियल एस्टेट की, नहीं, रिसर्च नहीं होती। वैल्यूएशन वाले ही सब देख रहे हैं बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, तो जनरली जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है उनमें रिसर्च की एक छोटी टीम, बहुत बड़ी कंपनियों में रिसर्च की टीम एक हो भी सकती है। जनरली देयर इज अ क्रेडिट टीम, देयर इज अ बिजनेस टीम, देयर इज अ रिस्क टीम। अच्छा, ओके 3 टीम होती है ओके। जो ये इन्वेस्टमेंट्स करेगी। बिजनेस का काम है इज लाइक द सेल्स, अपॉर्चुनिटी लेके आओ। सेल्स लेके आओ। हाँ। क्रेडिट का काम है उस अपॉर्चुनिटी में खोट निकालो, रैशनल देके, इरैशनल नहीं, rationally you Right. identify all the risk which is all the मतलब जो बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है उसको आप क्रिटिकली इवेल्युएट करो। सो बिजनेस विल डू इट ऑप्टिमिस्टिक इवेल्युएशन, क्रेडिट विल डू एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन। राइट। द रिस्क ऑफिसर का काम है इसमें से रिस्क ढूंढो कि कौन सा रिस्क बहुत सब्सटेंशियल है और कौन सा रिस्क फिर हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, कौन सा रिस्क हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जनरली ये 3 टीम ओके करती है एक प्रपोजल पे, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास इन फंड्स पास होती है। इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास पूरा पेपर आता है या प्रेजेंटेशन आती है कि ये प्रोजेक्ट है, दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपर, हु इज द डेवलपर, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, क्या एजुकेशन किया है उसने, क्या टीम है इसकी 25 लोगों की, पर कहाँ डिवाइडेड है, उसके फाइनेंशियल नंबर्स क्या है, उसका कोई टैक्स क्लेम है, कंप्लायंस इश्यूज है, उसके गवर्नेंस इश्यूज है, उसके स्कोप चेंजेस हुए थे, उसके कॉस्ट ओवररन्स हुए थे, उसके डिलेज हुए प्रोजेक्ट के, ये सब आप वो नोट पर लिखोगे। प्लस ये प्रोजेक्ट्स की भी हाईलाइट लिखो, लोकेशन एनालिसिस करो, मार्केट ओवर सप्लाई एनालिसिस करो। योर लोकेशन कैन बी फैंटास्टिक बट यू आर सराउंडेड बाय 100 प्रोजेक्ट्स, मे बी योर टाइमिंग इज नॉट राइट, राइट। सो देन डू कैश फ्लो प्लानिंग कि डेवलपर अपना ऑप्टिमिज्म कैश फ्लो भेजा है, क्रेडिट ऑफिसर का काम है उसको थोड़ा पेसिमिस्ट करके बिठा के बैठो कि बिकॉज हम अगर डेट एंगल से देख रहे हैं, सो इसमें 2 लेंस है, मैंने आपको बोला प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट। सो डेट एंगल से देखोगे तो आपको कंजर्वेटिव रहना है, राइट। आप प्रॉफिट नहीं लेके जा रहे हो टेबल से, तो आप इतना ऑप्टिमिज्म क्यों ला रहे हो कि नहीं वो सपोज एग्जांपल लीजिए कि बोरीवली में माल बिक रहा है और वहाँ पे हमने अंडरराइटिंग प्राइस अंडरराइट होती है, प्राइस अंडरराइट की 25,000 रुपये, डेवलपर बोलता है मैं 40,000 रुपये बेचूंगा। सो यू हैव टू डिस्काउंट द डेवलपर कि नहीं नहीं ठीक है आप बेचना 40,000 में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट 25,000 इज व्हाट द मार्केट इज सेइंग टू अस। सो मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं 25,000 पे ये मैथमेटिक्स करूँ, और अगर इसमें मेरे को ये डील बैठी तो ही मैं आपको याद करूँगा। समझा? तो ये कॉल लेना पड़ता है कि क्या रेट है ये, और ये रेट भी सही आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज 1,000, 2,000, 10% here and there and your profit can be out. Right. So sensitivities have to be done. Wonderful, wonderful.